Dear friends, well, from today I am going to start your prose. The first chapter of your book is The Last Lesson by Alphonse Daudet. Friends, his name is also taken as Alphonse Daudet, but actually it's Alphonse Daudet. Friends, Alphonse was a renowned French novelist, short story writer, playwright, and a poet also. If we talk about the early days of his life, his childhood was full of so many difficulties because his father's earning was very less. His father was suffering from a serious economical crisis at that time when he was born. So his condition was not so good in his early days. Later on, he joined his career with his brother. His brother was trying to make his fortune in the field of journalism. तो उस समय फ्रेंड्स उन्होंने अपना फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन निकाला और वो फेमस हुए. अगर उनकी लाइफ के बारे में आप देखोगे तो बेसिकली फ्रेंड्स ही वॉज एन एनार्चिस्ट, और इसीलिए एनार्चिस्ट होने के नाते ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी पर्सन ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज. ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट, you can say, the French state, and it was also a problem which he faced in his life. But friends, he was appointed as Monet's secretary. Monet was a very powerful minister of Napoleon III. In this way, he lived in his life. If we talk about his literary abilities, so basically he was a novelist and a short story writer. But friends, he was a very nice poet also. उनका जो poetic touch है, actually he belongs to naturalism. वो naturalism को belong करते हैं, तो उनका जो poetic touch है वो भी बहुत natural है. Whenever he takes a subject, he always takes it in a very simple way. His words are not so difficult. He is a person of very well vocabulary. His vocabulary was top class, and that is something that makes him so special and different from other writers of his times. अभी फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे उस चैप्टर के बारे में, मीन्स द चैप्टर विच यू हैव इन द सिलेबस, द लास्ट लेसन. सर, दिस चैप्टर इज सेट इन द डेज ऑफ, यू कैन से, फ्रेंचो-पर्शियन वॉर. At that time, friends, actually, France was defeated by Persia. Friends, Persia is basically led by Bismarck at that time, and Bismarck was a very strong, you can say, dictator. Not only a strong dictator but a diplomat also. Basically a dictator, friends. तो बिस्मार्क एक तानाशाह था, एक बड़ा शासक हुआ. तो बिस्मार्क के लीडरशिप में प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया. फिर प्रूसिया आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का पार्ट हुआ करता था एट दैट टाइम. तो इन दैट वॉर Alsace and Lorraine were the two districts of France which had gone
into the hands of Prussia. उसी कंडीशन को समझाती हुई एक स्टोरी है, द लास्ट लेसन के नाम से आपके सामने आती है. तो व्हाट वाज द कंडीशन स्पेशली in the district of Alsace at that time? That is explained here. The condition of the district Alsace is also explained here. And friends, at that time, what was the scenario in the surroundings? You can understand these all things easily in the story. Let's start the story. I started for school very late. मैं स्कूल के लिए बहुत देर में चला. That morning उस सुबह, and was in great dread of a scolding, and was a great dread of a scolding. डांटे जाने के बहुत बड़े डर से मैं भयभीत था, डरा हुआ था. स्पेशली विशेष तौर पर बिकॉज क्योंकि मिस्टर हैमल हैड सेड, मिस्टर हैमल ने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे सवाल करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स के ऊपर. एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. अब मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था. कहने का मतलब है कि मैं फेस्टिवल्स के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था. वेल फ्रेंड्स, यू ऑल नो, हियर ही सेज, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर में चला और मुझे डांटे जाने का डर था क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे. एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मैं पार्टिसिपल के बारे में फर्स्ट वर्ड्स नहीं जानता था. यू नो पार्टिसिपल फ्रेंड्स, पार्टिसिपल इज ए फॉर्म ऑफ नॉन फिनाइट. फ्रेंड्स, स्पेशली पार्टिसिपल जो है वो नॉन फिनाइट का एक फॉर्म है. आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, यू ऑल नो इट. और फ्रेंड्स, बेसिकली इसी बात को कहते हैं कि पार्टिसिपल्स के बारे में उनसे उनको पूछना था और पार्टिसिपल के बारे में वो एक भी वर्ड नहीं जानते थे. फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और घर के बाहर समय बिताने का. मतलब कहने का क्या था कि एक क्षण के लिए मैंने भागने और दिन बाहर ही बिताने के बारे में सोचा. इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत अधिक धूप थी. सो ब्राइट, और काफ़ी चारों ओर चमक यानी निखरी हुई धूप फैली हुई थी. और क्या है, द बर्ड्स, चिड़िया, वो चर्पिंग, चहचहा रही थी. एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के एज. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. आपको पता है फ्रेंड्स, वुड्स प्रोफेशनल फॉरेस्ट को कहते हैं. एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़िया थी वो जंगल के किनारे चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक कहते हैं, और ओपन फील्ड बैक मीन्स खुले स्थान पर. किधर? एट द सॉ मिल आरा मशीन को कहते हैं. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल कहते हैं, और जो आरा मशीन के पीछे वाला खुला स्थान था उसमें द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. रशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, वहाँ के सैनिक अभ्यास कर रहे थे. दे वर ड्रिलिंग, दे वर प्रैक्टिसिंग. तो फ्रेंड्स कहते, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल. मीन्स द होल एटमोस्फियर वॉज सो ब्यूटिफुल. पूरा एटमोस्फियर इतना सुंदर था, इतना अच्छा था. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. टेम्पटिंग क्या होता है? लालच करना, लोभ करना. यानी ये पूरा का पूरा एटमोस्फियर इतना लोभित करने वाला था, इतना अट्रैक्ट करने वाला था. टेम्पटिंग मीन्स ल्योरिंग फ्रेंड्स. द होल एटमोस्फियर वॉज ल्योरिंग मी टूवर्ड्स इट. और ये कंप्लीट एटमोस्फियर कम से कम पार्टिसिपल्स के रूल्स को बताने से तो बहुत अच्छा था. मीन्स आई वॉज टेम्पटेड टू गो towards these things and just to spend my time in this beautiful atmosphere. इस शानदार एटमॉस्फियर में अपना समय बिताने के लिए मैं टेम्प्ट कर रहा था. बट आई हैव द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. लेकिन मेरे अंदर इस बात की स्ट्रेंथ थी कि मैं रेसिस्ट कर सकूं. कहने का मतलब क्या है, ये सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा अधिक अच्छा था. लेकिन मेरे अंदर अपने आप को परसिस्ट करने की, स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, अपने आप को रोकने की शक्ति थी. एंड हरीड आफ्टर स्कूल, और इसलिए मैं जल्दी से स्कूल की ओर भागा. देखो, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट मीन्स फ्रेंड्स, मेरे अंदर आई कैन स्टॉप माई सेल्फ, आई कुड स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग टेम्पटेड जस्ट टू गो ऑन टू स्पेंड टाइम देयर. तो कहते हैं एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. दिस
starting lines of the chapter, the author tells us about Mr. Hamill, who was his teacher of grammar. He told them to ask the questions related to participles. As you all know, participle is a form of noun finite. Basically, participles work as adjectives in the sentences, my dear friends. He was totally unknown from the participles. Means he didn't know ABC of the participles. That's why he was thinking, जो बाहर का एटमॉस्फियर था, the wonderful birds were chirping on the edge of the woods, the complete atmosphere was fantastic, and there was a sawmill also, and in the open field back of the sawmill there were Prussian soldiers who were drilling. So he says that he was tempted from the wonderful atmosphere. The complete atmosphere was wonderful, and these sights were tempting him to come towards them. ये सारे साइट्स उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे, अपनी ओर बुला रहे थे. But he told us that I had the strength to resist. I mean, I had the strength to control myself. So I controlled from being lured. I controlled myself from being tempted. And then, hurried off to school. I started towards school in hurry. Now the next lines. When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा या टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board. मुझे बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड दिखाई पड़ी. ये बुलेटिन बोर्ड, फ्रेंड्स, a board on which the news were written at that time. If there was any news, the news was written on that bulletin board. तो कहते हैं when I passed the town hall, जब मैंने टाउन हॉल को क्रॉस किया, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी. For the last 2 years, पिछले 2 सालों से all our bad news had come from there. जो भी मुझे हमें bad news मिली थी, because the condition was very bad and we were only getting the bad news at that time. So he says that for the last 2 years, पिछले 2 सालों से all our bad news had come from there. सारी bad news वहीं से आई थी. The lost battles, युद्धों में हार. The lost battles means हारे हुए युद्धों के बारे में, the drafts के बारे में, the orders of the commanding officers, या commanding officers ने अगर कुछ नए आदेश दिए हो, means whatever the new orders were coming from the commanding officers, everything that didn't suit us, every news was coming on that bulletin board for the last 2 years. तो ये कहते हैं कि लास्ट 2 सालों से सारी न्यूज हमें वहीं से मिली थी. बैटल्स के हारने की न्यूज, नए ड्राफ्ट्स के बारे में, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एवरीथिंग वाज कमिंग ऑन दैट बुलेटिन बोर्ड. सो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, या विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने एक तरह से खुद से बात की, बिना रुके हुए खुद ही मैंने सोचा, क्या व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मसला हो सकता है, मीन्स व्हाट कैन बी द मैटर. देन फिर एज आई हरीड बाय फास्ट एज कुड आई गो, जितना तेज मैं चल सकता था जब मैं आगे की ओर भागा. द ब्लैक स्मिथ वॉचर, कहते जितनी तेज मैं भाग सकता था जब मैं भागा, तो वो लोहार जो वॉचर था, जो वहां अपने हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो वहां अपने एक अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, अब उस बुलेटिन को पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, बुलेटिन को पढ़ रहा था, उसने वो पीछे से, मेरे पीछे से चिल्लाया, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत भागो बब, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. इतना तेज भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बड़े आराम से हैं, समय रहते हुए आप स्कूल पहुंच सकते हो. इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच स्कूल, देयर इज नो हरी, सो डोंट गो सो फास्ट. आई थॉट, मुझे लगा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, कहते हैं, और मुझे लगा मैं मजाक उड़ा रहा था. एंड ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाँफता हुआ मैं एम हैमिल थे उनके छोटे से गार्डन में पहुंचा. फ्रेंड्स, सिट अगेन. देन आई कहते हैं कि आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर, कहते हैं जो ब्लैक स्मिथ वॉचर था
वॉचर नाम का लोहार जो वहां पर था, हु वॉज देयर जो वहां पर था विथ हिज अप्रेंटिस, अपने एक अप्रेंटिस का यहाँ अर्थ क्या होगा? अप्रेंटिस का मतलब एक सपोर्टर से, एक सहायक से, फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उनका जो मेन सेंस है वो एक सहायक से ही है। अप्रेंटिस मीन्स अ नोविस, फ्रेंड्स, जो एक नौसिखिया आदमी होता है, जो सहायक होता है, साथ में काम करता है। तो उन्हीं के लिए वो बात उन्होंने यहाँ पे कही कि विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया और चिल्लाते हुए कहा कि डोंट गो सो फास्ट पोप, इतनी तेजी से मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बड़े आराम से अभी अपने स्कूल पहुंच सकते हो, इन काफी समय है, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच योर स्कूल। तो फ्रेंड्स वो कहते हैं आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, ही थॉट दैट एक्चुअली ही इज नॉट सीरियस बट ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। आई रीच मिस्टर हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, इसलिए मैं और तेजी से भागा और ऑल आउट ऑफ ब्रेथ लगभग हांफता हुआ मैं मिस्टर हैमर्स के लिटिल गार्डन में पहुंचा। वेल माय डियर फ्रेंड्स, I stop this video here. In the next class, I will keep continuing the chapter. Till then, it's goodbye from here. Thank you so much.